Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training sessions of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Raj Lakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about the new release, that is 3.0.1 in Tally Prime. Before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and development. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 and Skill India. So now moving ahead to the today's topic. So before that, welcome the speakers. So the presentation will be conducted by Ms. Sonali. So Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration will be done by Mr. Firoz. So Firoz, are you here? Yes, madam. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, and I am available. Thank you. Okay. Hearty welcome all of you. So I request Sonali and Firoz to move ahead with your presentation. Yes, ma'am. Just 1 minute. Ma'am, my screen is visible? Yeah, it's visible. Okay. Hello, good evening all. I am Sonali, representing on behalf of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. On behalf of the management and the entire team of Raj Lakshmi Solutions, I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic is Tally Prime Release 3.0.1. E-invoicing. Easy correction of e-invoicing details. You can now find out with greater ease if there are any issues or missing details for generating e-invoices. The e-invoice report will help you make the necessary corrections right here in Tally Prime and prevent rejections on the e-invoice portal. Accordingly, you can now easily resolve the following issues from uncertain transactions. First, missing or invalid state for consignee and dispatch from. Second, mismatch between state and PIN code. Third, mismatch between HSN and type of supply. Fourth, invoice number starting with 0. जैसे कि हम देखते हैं ई इनवाइसिंग जनरेट करते वक्त हमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। तो अभी ई इनवाइसिंग में जो भी इश्यूज आएंगे क्रिएट करते वक्त, जो भी हमारे इश्यूज है या कुछ मिसिंग डिटेल्स होती है हमारी जनरेटिंग ई इनवाइस जनरेट करते वक्त, तो वो हम टैली प्राइम के ई इनवाइस रिपोर्ट्स में जाके जो हमारे इश्यूज है, जो भी कुछ मिसिंग डिटेल्स है, वो हम वहाँ पे फिलअप करके हमारा जो रिजेक्शन में जा रहे हैं ई इनवाइस, वो हमें वहां से रिसॉल्व करके हम ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी हमें इश्यूज आते हैं टैली में, जो कि जैसे कि हमारी कुछ मिसिंग डिटेल्स रहती है, जैसे कि अगर कोई कंसाइनी या डिस्पैच का हमने स्टेट वहां पे डालने दिया, स्टेट एंड पिन कोड वहां पे मिस है, या कुछ स्टॉक आइटम वहां पे दिए बट वहां पे HSN कोड एंड टाइप ऑफ सप्लाई मिस है, या हमारा कोई भी सेल्स का इनवाइसिंग नंबर है अगर स्टार्टिंग विद 0 से है, तो ये हम वहाँ पे जो भी हमारे इश्यूज आएंगे वो हम ई इनवाइस रिपोर्ट में जाके वहाँ पे रिसॉल्व करके हमारा ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड स्लाइड, ई इनवाइसिंग विद बिल्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी. You can now seamlessly handle e-invoicing with bill quantity and actual quantity. There won't be any issues in e-invoice generation even when the bill quantity exceed the actual quantity in your transaction. अगर कोई भी हमारे ई इनवाइस सेल्स के बिल में बिल क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी अगर यूज होती है, तो वो भी हम ई इनवाइस के वो हम ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं एक्चुअल बिल and bill quantity के through. E-invoicing for foreign parties. Generating e-invoice for foreign parties is a lot smoother now. There won't be any issues e-invoice generation even when you are providing a service to a party located out of India and billing a local or interstate party. अगर फॉरेन पार्टी के थ्रू हमारा ई इनवाइस जनरेट होता है तो हम टैली प्राइम के न्यू रिलीज से वो स्मूथली हम जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड,
सेकेंड हमारा है डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स इन ई इनवाइस. द डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स विल नाउ बी डिस्प्ले with better clarity while recording e-invoice transactions. You have to enable the provide dispatch from details option only once, after which you can easily view and update the details in subsequent transactions. डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स जो है, अगर हमने यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स जो है, जो हमें टैली प्राइम के रिलीज में वो क्लैरिटी लेवल पे वहां पे दी गई है. इनवाइस जनरेट करते वक्त हमने वन टाइम वो डिस्पैच डिटेल्स वहां पे अगर फिलअप कर दी तो नेक्स्ट कोई भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पे हमें डिस्पैच डिटेल्स का ऑप्शन एनेबल करना जरूरी नहीं है. वहां पे वो ऑप्शन अपडेट रह जाता है और हम वो ई इनवाइस जनरेट करते वक्त व्यू एंड अपडेट कर सकते हैं. E-way bill along with e-invoice. The generation of e-way bill along with e-invoice is now easier. You can similarly generate e-way bill for credit notes and for transaction below their sold limit. हम e-way bill के साथ e-invoice भी जनरेट कर सकते हैं ये रिलीज में. और इसके साथ हमारा अगर कोई भी क्रेडिट नोट्स या लिमिट से कम हमारा कोई अगर ट्रांजेक्शन है तो उसके अगेंस्ट भी हम ई-वे बिल इजी लेवल से जनरेट कर सकते हैं. सेकेंड है हमारा जीएसटी. द जीएसटी मॉड्यूल कम्स विद द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट दैट विल इनहेंस योर रिटर्न फाइलिंग एक्सपीरियंस. एक्सेप्ट एज इट्स फॉर ब्लैंक HSN and SAC. If the annual turnover of your business is less than 5 crores, then HSN and SAC details are optional. Accordingly, TallyPrime provides you with the awesome flexibility to accept such transactions and consider them as included. TallyPrime 3.0.1 के रिलीज में हमें जीएसटी में एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि जो हमारे रिटर्न फाइलिंग करते वक्त हमारे अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स में इश्यूज है तो वो हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं. एक्सेप्ट एज इज एक ऐसा ऑप्शन दिया है, अगर हमारे बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वहाँ पे HSN एंड SAC डिटेल जो है वो हमें ऑप्शनल में दिया गया है. और एक ऑप्शन ऐसा है कि जो हमारा ट्रांजेक्शन अगर मिसमैच में अनसर्टन ट्रांजेक्शन में अगर बता रहे तो हम एक्सेप्ट एज इज करके वो ट्रांजेक्शन वहां पे मूव आउट कर सकते हैं. मतलब वहां पे हमारा वो ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड में चला जाता है और हम हमारा जो भी है जीएसटी का ट्रांजेक्शन वहां पे नील कर सकते हैं. सेकेंड है जीएसटी. जीएसटी में हमें दिया है जीएसएन फ्रॉम GSTR 3B. GSN from GSTR 3B. Filing GSTR 3B using GSN is a lot smoother now. The GSTR 3B GSN exported from TallyPrime will now contain the details of all the section and transactions. Even the zero value sections will be similarly exported so that you can update the values on the portal as needed. GSTR फाइलिंग हम GSN फाइल थ्रू अभी 3.0.1 के रिलीज में स्मूथली कर सकते हैं. GSTR 3B GSN हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो टैली प्राइम में हमें अभी यहाँ पे सेक्शंस वाइज एंड ट्रांजेक्शंस वाइज वहाँ पे कंटेंट्स दिए गए. इसमें एक ऐसा भी एक ऑप्शन से जो कि हमारा अगर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो वो भी हमें सेक्शन वाइज हमें वहाँ पे शो करता है. वो हम एक्सपोर्ट करके आगे हम GSN फाइल GSTR 3B फाइलिंग के लिए वहाँ पे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं. तो 3.0 के रिलीज में 3.0.1 के रिलीज में हमें ये न्यू फीचर्स एड ऑन हो गए हैं. सो थैंक यू and now it is time for the live demo. I request Firoz to proceed ahead for the live demo. Thank you. Okay, thank you. Hello everyone, myself Feroz Sayed, presenting live demo session on behalf of Raj Lakshmi Solution Private Limited. So I will share my screen. So everyone, सबसे पहले हम तो ये देखते हैं जो हमारा रिलीज 3.0 का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था, जैसे कि अनसर्टाइन में ट्रांजैक्शन चले जा रहे थे. तो अभी जो नया रिलीज आया है 3.0.1 उसमें ये एक्चुअली रिजॉल्व होकर मिल रहा है. अभी हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो अभी अनसर्टाइन में नहीं दिखेंगे, अभी प्रॉपर हमारा जीएसटी में रिफ्लेक्ट होंगे. तो ये एक पॉइंट तो सबसे पहले रिकवर हो गया. देन उसके बाद में देख लीजिए हमारा जो मिसमैच जो आता था स्टेज का, हमारा स्टेट का जो मिसमैच आता था अभी वो भी रिजॉल्व हो गया है. जैसे कि अभी देखते हैं उसके लिए
जो मेरा एग्जिस्टिंग सेल इनवॉइस बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं ये एक इनवॉइस ले लेता हूँ। अभी इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा पार्टी डिटेल है, कंसाइनी जो शिप टू बोलते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ अलग आता था और हमारे ई इनवॉइस के ऊपर कभी कभी अलग एड्रेस और अलग डिटेल शो करता था। तो अभी जो हमारे रिलीज में ये एक्चुअली रिजॉल्व हो गया है। अभी देख लीजिए, इसको देखने के लिए एक ऑप्शन है, वैसे एग्जिस्टिंग में भी था, अभी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये इनवॉइस ऑप्शन यस कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में कॉन्फ़िगर में जाना है, F12, देन उसके बाद में प्रोवाइड डिस्पैच फ्रॉम डिटेल। यहाँ पर यस करने के बाद में हमको पूरा दिखेगा कि एग्जैक्टली क्या एड्रेस ले रहा है वो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा, यहाँ पर एक्चुअली पहले मिसमैच होता था, यहाँ पर भी अलग एड्रेस आता था, अभी ये एड्रेस प्रॉपर आ रहे हैं। देन यहाँ से हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, अगर हमको चेंज करना है, इसके अलावा भी अगर कोई और एड्रेस डालना है तो यहाँ पर हम मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में देखते हैं हम जो मिसमैच आ रहा था हमारा GST R1 में भी आ रहा था, जो हमारा स्टेट का जो मिसमैच था वो हमारे GST में भी दिख रहा था। तो उसके लिए वहां पर भी देख लेंगे हम। GST R1 में मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं डेट ले लेता हूँ। ये मैं मेरा जो ट्रांजैक्शन डेट है वो डाला हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजैक्शन अनसर्टेन में डाला हूँ मैनुअली, जिसके लिए मैं आपको दिखा सकूँ प्रॉपर में। अभी देख लीजिए, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पर हमको वो दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या होता था, हमको वो दिखाई नहीं देता था कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर इश्यू है और कैसे चेंज करना है। अभी हमको यहाँ पर GST R1 में भी वो दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर हम इंटर करेंगे, नॉर्मल इंटर करेंगे, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज इनवैलिड। तो यहाँ से जस्ट हमको हमारा प्लेस सेलेक्ट कर लेना है। पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था उन्होंने 3.0 में, अभी इसमें हम उसको यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं भी मेरा स्टेट सेलेक्ट करके मैं यस कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिए, मैं यहाँ से इंटर करने के बाद में वो निकल चुका है। तो इसी तरीके से हम है ना हमारे GST R1 में भी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले हमको एंट्री लेवल पे ही जाकर उसको स्पेसिफाई करना पड़ता था, अभी हमको नया ऑप्शन दिया है सर। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया स्टेट का। उसके बाद में देखते हैं हम मिसमैच HSN, जो हमारे HSN का भी इश्यूज आ रहे थे, जो मिसमैच में चले जा रहे थे। तो अभी देख लीजिए, इसमें भी दो तरीके के ऑप्शन दिए गए, जैसे कि एक GST R1 में है, GST R3B में भी है। मैं पहले R1 देख लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, HSN एंड SAC इज इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने HSN डाला हुआ है, बट फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो अभी इसके लिए यहाँ पर एक्सेप्ट एज इज का ऑप्शन था, जैसे कि इसको अगर एक्सेप्ट करना है हमको एज इट इज, मीन्स ये प्रॉपर होने के बाद में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये एक्सेप्ट एज इज फॉर्मेट बोलकर ऑप्शन दिया है। उसका शॉर्टकट की है Alt+V। तो मैं ये कर लेता हूँ। यहाँ पर दिखा रहा है दिस acceptation will be accepted and include in return, do you want to accept as is। इसको मैं यस करूंगा तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम HSN जो भी हमको मिसमैच में दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकते थे। एक ये ऑप्शन हो गया। सेकेंड, हमारा ई इनवॉइस में भी सेम एज इट इज इशू आता है HSN का, तो वो ई इनवॉइस के पोर्टल पर ई इनवॉइस के रिपोर्ट में भी जाकर हम उसको एज इट इज रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ GST रिपोर्ट, ये इनवॉइस,
यहाँ पर मैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड इसमें जाता हूँ मैं। यहाँ पर देख लीजिए सेम वही आ रहा है HSN एंड SAC। ये उसी तरीके से इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों लोकेशन से कर सकते हैं, एक GST से भी और सेकंड हमारा इनवॉइस से भी। ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, एक ऑप्शन भी रिकवर हो गए। देन उसके बाद में जो हम इनवॉइस जनरेट करते थे, इनवॉइस जनरेशन में हमारा सपोज इनवॉइस नंबर में अगर जीरो रहता तो वो एक्सेप्ट नहीं करता था, मीन्स वो इनवॉइस जनरेट नहीं होता था उस पर। अभी ये रिलीज में वो भी रिजॉल्व हो गया। जैसे कि ये मेरा सेल इनवॉइस है, अभी इसका सीरीज है 8493, इसका वाउचर नंबर है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा था अभी तक। अभी इसके पहले अगर हमको जीरो लगाना है तो हम वो लगा कर भी उसको उसके ऊपर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, 0789 फॉर एग्जांपल, ये मैं इनवॉइस नंबर ले लिया। तो इस तरीके से जीरो नंबर डालकर हम भी जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन है, जैसे कि हमारा एक्चुअल और बिल्ड के ऊपर भी अभी इनवॉइस बन रहा है। अभी बीच में कुछ इशू आ रहा था, अभी वो पूरा सभी का सभी रिजॉल्व हो चुका है। अभी हम एक्चुअल और बिल्ड में भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। एक उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। उसके लिए मैं ऑप्शन यस कर लेता हूँ, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। ये यस कर रहा हूँ मैं। एक इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। एज अ डेमो के लिए मैं एक इनवॉइस क्रिएट करूँ। एक्चुअल में सपोज 11 क्वांटिटी है और हमको बिल्ड करना है 10 क्वांटिटी। अभी जब भी हम इसका इनवॉइस जनरेट करेंगे, इनवॉइस तो ऐसे ही रहेगा, जब इनवॉइस हमारा जनरेट होगा ना तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो उसके ऊपर जनरेट होगा। ऐसे नहीं कि जो हमारा बिल्ड के ऊपर जितना क्वांटिटी है उस पे होगा। अभी उस टैली से डिसाइड हुआ है कि ये जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है उसके ऊपर इनवॉइस जनरेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी इनवॉइस में हमको फॉरेन पार्टीज के लिए भी इनवॉइस का परमिशन दिया है। अभी इजी तरीके से हमें ना फॉरेन पार्टी को इनवॉइस बना सकते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट में लेते हैं, उसका भी एक डेमो इनवॉइस बना लेते हैं हम। एक मैं पार्टी ले लिया हूँ। नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूँ। देन यहाँ पर सेल्स, अभी देख लीजिए यहाँ से पहले हमको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं पहले नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर वाउचर ले लेना है, स्पेसिफाई इन वाउचर। F12 में से ऑप्शन यस करने सबसे पहले सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिया है, यस कर लिया हूँ मैंने। उसके बाद में यहाँ पर F12 में फिर से एक ऑप्शन दिया है, मॉडिफाई GST एंड HSN एंड SSC रिलेटेड डिटेल। इसको यस कर लेना है। थोड़ा ऑप्शन चेंज हो गया है इस बार, तो मैं इसको यस कर लिया। देन उसके बाद में मैं कोई स्टॉक आइटम सेलेक्ट करता हूँ। पहले तो मैं एक्चुअल बिल्ड वाले को नो कर लेते हैं। स्टॉक आइटम ले लिया, उसका क्वांटिटी ले लिया हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए स्पेसिफाई डिटेल हियर करने के बाद में यहाँ पर टैक्सेबल, देन यहाँ पर हमको दिखा रहा है। अभी हमको फाइंड आउट नहीं हो रहा था नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो अभी यहाँ पर स्टॉक आइटम के बाद हमको दिख रहा है। तो जो भी फॉरेन पार्टी है उसको अगर इनवॉइस बनाना है तो यहाँ से सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन उसका एक्सपोर्ट टैक्सेबल ले लेना है। देन उसके बाद में हम इजीली हमारा इनवॉइस बना सकते हैं।
बाकी प्रोसेस नॉर्मली है जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके से इसका प्रोसेस करना है। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन उसका सेलेक्ट कर लेना है। सेम उसी तरीके से हमारा जो SEZ रहता है उसका भी सेम ऐसा ही करना है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में ये सिलेक्शन करना कंपलसरी है, तो इसकी वजह से हमारा दिक्कत नहीं आता है मिसमैच के लिए। ये एक हो गया। देन उसके बाद में एक और एक नया पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि हमारा यूनिट ऑफ मेजर का नया फीचर दिया है टैली 3.01 ने। अभी अगर हम कोई प्रोडक्ट के अंदर अगर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यूनिट ऑफ मेजर नहीं भी लेते हैं तो उसके ऊपर इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। मींस जब आप जनरेट कर लेंगे इनवॉइस तो ऑटोमेटिकली वो आपका यूनिट ऑफ मेजर अदर ले लेगा। मैं जैसे कि बता देता हूँ, मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है डेमो आइटम बोलकर। इसका मैं HSN नंबर ये यूनिट ऑफ मेजर नहीं डाला हूँ, नॉट एप्लीकेबल रखा उसको। देन इसी तरीके से हम नॉर्मल जैसे इनवॉइस बनाते हैं उस तरीके से बना लेना है। उसका रेट डाल देता हूँ मैं, सेल टैक्सेबल। हाँ, अभी मैं इसका GST ले लेता हूँ। सभी लास्ट में हमको इसी तरीके से ऑप्शन देंगे, डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस। तो इस तरीके से अब अगर हम इस पे जनरेट कर लेंगे तो ये पोर्टल पे ऑटोमेटिकली उसका यूनिट ऑफ मेजर अदर ले लेगा। ये ऑटोमेटिकली टैली में ऑप्शन है ये। उसके बाद में एक और नया ऑप्शन देखते हैं। एक अभी ऐसा ऑप्शन दिया है टैली में, जैसे कि हमारा 2 GST नंबर है सेम एज इट इज। फॉर एग्जांपल हमारा कोई ABC पार्टी है और हमारा कंपनी ABC है एंड उसका GST नंबर सेम है, और दूसरा एक और की पार्टी हम लोग के पास बना हुआ है उसका भी GST नंबर सेम है। हम कभी कभी हमारा अदर गोडाउन के लिए कोई ट्रांजेक्शन पास करते हैं बट GST सेम रहता है। कोई प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया कम हो गया उसके लिए हम हमारे खुद के ही फर्म में या फिर खुद के ही सेकंड लोकेशन में हम मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका GST नंबर सेम होता है, तो उसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता था। अभी जो हमारे नए रिलीज में वो एक्सेप्ट कर रहा है। अभी आप सेम एज इट इज़ दोनों GST नंबर का पार्टी भी लेंगे ना तो वो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके ऊपर आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। उसका GST में भी मिसमैच नहीं आएगा एंड इनवॉइस के लिए भी कोई मिसमैच नहीं आएगा। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा मिला है हमको। उसके बाद में जो एक्सेप्ट एज इसका जो HSN का बताए थे मैडम ने, तो वो भी हमको अगर 5 CR से अब लेस देन हमारा 5 CR रहेगा उसी को ही वो HSN एक्सेप्ट एज इस करना है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। आंसर टाइम HSN। अभी ये वाला जो ऑप्शन था ये सिर्फ ये लेस देन 5 CR वालों को ही एक्सेप्ट करना है। अगर उसके अबोव रहेगा तो नहीं करना है क्योंकि ये मिसमैच आएगा इनवॉइस रिलेटेड। तो इसके लिए यहाँ से हम जो जब भी करेंगे तो देख दिखा कर ही कर लेना है। और एक ऑप्शन दिया है हमको, अभी हम GSTR3 भी JSON फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट में GST रिटर्न। GST रिटर्न पर इंटर कर लिया हूँ मैंने। अभी हमारा पूरा ट्रांजैक्शन व्यू हो रहा है, जो भी GSTR1 के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन हैं पूरे डिस्प्ले हो रहे हैं।
अभी यहाँ पर ऑप्शन दिया है राइट साइड में GSTR3 भी और GSTR1 दोनों भी दिया गया है। GSTR1 पे एंटर कर लेता हूँ मैं। लोड हो रहा है ज्यादा ट्रांजैक्शन होने की वजह से। हाँ, ये मेरे ट्रांजैक्शन व्यू हो रहे हैं। अभी यहाँ पर नीचे से एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, देन कॉन्फ़िगर में जाना है और यहाँ पर फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर दो फॉर्मेट दिए हैं, JSON भी है, एक्सेल भी है और CSV भी है। तो JSON में देखते हैं। ये JSON में इस तरीके से हम हमारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा JSON फॉर्मेट रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से हम एक्सेल में भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मेरा एक्सेल में हो गया एक्सपोर्ट। दोबारा जाता हूँ मैं GST रिटर्न। पहले से हमने JSON में किए थे, अभी एक्सेल में देख लेते हैं। वन मंथ का मैं पीरियड डाल देता हूँ। फरवरी मंथ का हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो मैं उसका पीरियड डाल दिया हूँ फरवरी का। हाँ, ये मेरा पूरा ट्रांजैक्शन व्यू हो रहा है। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ हमारे एक्सेल फॉर्मेट के लिए। मेरा लोकेशन, देन यहाँ पर एक्सपोर्ट। सो इसी तरीके से हम एक्सपोर्ट करेंगे GSTR3 भी। बट एक इशू है, हमको GSTR3 का यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, इसके लिए ये एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके लिए मैं दिखाता हूँ। हमको यहाँ पर GST के पोर्टल पर जाना है। GST के पोर्टल पर जाने के बाद में डाउनलोड्स, यहाँ पर ऑफलाइन टूल, देन यहाँ पर GSTR3 भी ऑफलाइन यूटिलिटी, ये डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ये लोकेशन से डाउनलोड करेंगे हम, तो इस तरीके का एक जिप फॉर्मेट मिलेगा। देन ये जिप फॉर्मेट को हमको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया है। देन हमको ये लोकेशन पे एक्सपोर्ट करना रहेगा। जो हमारा GST3 भी हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, तो ये लोकेशन लेना है। ये अगर यूटिलिटी अगर हमारा रहेगा इंस्टॉल, तो ही हम 3 भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो ये था हमारा रिलीज 3.01 का प्रोसेस। इस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं जो भी नए फीचर्स आए उसके ऊपर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Sonali and Firoz, for your presentation. So, it's a time for overview of today's session. It's over to you, Bhagwati sir.
Yeah, thank you, team. Myself is Bhagwati Dhandaria. So today's session is our latest release 3.0.1. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स है इंडिया में जीएसटी कंप्लायंस के अंदर में 5 करोड़ से ऊपर जिनके भी टर्नओवर है उनको 1 अगस्त से ई इनवाइसिंग करना है। इट मींस अभी आप जो इनवाइसिंग आप करते थे अपने सिस्टम से, आप अब अपने सिस्टम से इनवाइस तो करेंगे, लेकिन साथ में उस इनवाइस को अपडेट करना होगा जीएसटीएन के पोर्टल पे। जीएसटीएन IRN नंबर आपको देगा जो क्यूआर कोड के फॉर्मेट में होगा, जो आपके टैली के या आपके इनवाइस के ऊपर प्रिंट होना चाहिए, तभी आपका इनवाइस वैलिड माना जाएगा। सो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर में है वो सभी आपको ये एप्लीकेबल है ई इनवाइसिंग। सो नाउ टैली के जो रिलीज हैं, टैली प्राइम रिलीज 3 में ई इनवाइसिंग आपके 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर के लिए भी इनेबल हो गया था। नाउ द लेटेस्ट रिलीज इज देयर इज 3.0.1 जिसमें कुछ बग्स थे 3 में जो अपडेट किए गए, नए अपडेशन लाए और जो कि स्मूथ आपका ई इनवाइसिंग 1 अगस्त से आप कर पाए और आपका बिजनेस कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। सो आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है वो सभी लोगों को ई इनवाइसिंग वेरी स्मूथर वे विदाउट एनी बिजनेस डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस 1 अगस्त से आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको अगर कोई भी सपोर्ट लगे तो हमारी राज्य लक्ष्मी की टीम आपके लिए पूरी तरीके से सपोर्ट के लिए रेडी है और आप अपने जो कनेक्टेड लोग हैं राज्य लक्ष्मी के उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और आप हमें फोन कर सकते हैं। और ये जितने भी वीडियोस जो हम तैयारी के ई इनवाइसिंग रिलेटेड और अदर जितने फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हमने वेबिनार किए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आपको यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे चैट में, अभी जूम के चैट में है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां से आप आराम से खुद से भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ई इनवाइसिंग को। अगर आपको इसमें कोई भी सपोर्ट लगेगा तो डेफिनेटली आवर टीम इज देयर एंड वी आर आल्सो हियर। So this is overall idea. So here is a few people have some questions. So मैं उनको अनलॉक करूँगा, अनम्यूट करूँगा ताकि वो अपने क्वेश्चंस को यहाँ रख पाए और हम उसको आंसर कर पाएं। So मिस्टर मैस्को मेटल्स सर, मैं आपको अनम्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। मिस्टर मैस्को मेटल, Vijay, you just give access to unmute. Okay, I think उन्होंने अपना हैंड रेज किया था, अभी विड्रॉल किया है। नेक्स्ट मिस्टर नारू। सो या मिस्टर नारू, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें रेज हैंड कीजिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें और आपके क्वेश्चन के आंसर कर सकें। Mr. Naru and Mr. Prakeshav. Mr. Prakeshav, आपने भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किया है। सो आपको मैं अनम्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्टर प्राग, आपने जैसा कि लिखा कब से चालू होगा, ये 1 अगस्त से 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 1 अगस्त से चालू है। सो दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अगस्त आपकी कंपनी का। I think Anga, there is not any much more questions, so this is the right time to wind up the sessions. Okay, sir. And thank you very much. Thank you so much, sir. So now this session will be uploaded in the YouTube channel, so be connected to our social media. Thank you so much everyone for joining the today's session. Thank you everyone.